And welcome guys, this is Ashutosh, your host, and I welcome you all in this new video tutorial session of electrical machines. Okay, so guys, today we are taking this question. So our question is, what is commutation in DC machine? So guys, let's start. And now we will see what is commutation in DC machine. So guys, बहुत ही important question जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है guys, what is commutation in DC machine? So basically guys, आप यहाँ पर देख सकते हैं, okay, the figure below shows the schematic diagram of two-pole lap wound generator. So guys, हमने यहाँ पर diagram लिया हुआ है. Okay, this is the diagram. Okay, where this is brush. Okay, you can see over here on your screen, this is the brush. Okay, there are two brushes. Okay, and these are the commutator segments. Okay, we have named it. This is first commutator segment, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth. So guys, suppose there are 8 commutator segments, and these are the mica insulation. This the very thin lamination is there. आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये माइका का इंसुलेशन है और ये कॉपर के सेगमेंट्स के बने होते हैं जो कम्यूटेटर होते हैं, और वहां पर एक माइका का सेगमेंट होता है. माइका का सेगमेंट जो दो कॉपर सेगमेंट्स के बीच में लगा होता है गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं. और ये कॉइल्स हैं गाइस, दीज आर द कॉइल्स. ओके, कनेक्टेड बिटवीन, ओके, दीज आर द कॉइल्स कनेक्टेड. ओके, दे आर सोल्डर्ड ऑन द कम्यूटेटर राइजर. गाइस, ये कॉइल्स हैं जो आप देख सकते हैं, और ये क्लोज सर्किट वाइंडिंग्स पाई जाती है जो आर्मेचर वाइंडिंग्स की डिजाइन है. इसमें यह लैप वाइंडिंग की डिजाइन है, और यहां पर पैरेलल पाथ की जो संख्या है, ओके, 2 है गाइस. सो देयर आर 2 पैरेलल पाथ्स आर देयर. ओके, यू कैन सी ओवर हियर, करंट यहां से आ रही है. ओके, करंट यहां से आएगी, और आप देख सकते हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग्स में किस तरीके से डायरेक्शन ऑफ करंट जो हाफ करंट हो जाएगी, ये IA/2 कैरी करेगी, और ये वाला जो पार्ट है ये भी कैरी करेगा IA/2. सो गाइस, करंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बिकॉज द आर्मेचर पाथ, द नंबर ऑफ आर्मेचर पाथ्स आर 2. सो गाइस, एंड द रोटेशन, यू कैन सी द रोटेशन ऑफ DC मशीन, वी हैव कंसिडर्ड दिस एज ए DC जनरेटर. सो आप देख सकते हैं गाइस, जो रोटेशन की डायरेक्शन है जनरेटर की वो क्लॉकवाइज है, और ये कम्यूटेटर जो ब्रशेस जो होते हैं गाइस वो स्टैटिक होते हैं. ब्रशेस विल बी स्टैटिक, एंड these are the commutator segments which are running, okay, which are moving from, okay, top to right, as you can see over here in the clockwise direction. आप देख सकते हैं गाइस, ये कम्यूटेटर सेगमेंट्स वाइंडिंग के साथ जो कॉइल है उसके साथ मूव कर रहा है, और ब्रश के सरफेस को पार करेगा गाइस. it will move, okay, it will be in contact with the brush surface. Brush contact will be there, okay, and so commutation is the process where current will be reversed. So guys, देखते हैं फिर next sentence क्या है. There are 2 parallel paths between the brushes, जैसा कि we earlier discussed. Therefore each coil of the winding carries 1/2, in this case IA/2, and the total current IA entering or leaving the armature. So guys, total current की वैल्यू यहाँ पर IA ली गई है. आप यहाँ पर देख सकते हैं the total current value is IA, और ये IA/2 हाफ पोर्शन में फ्लो होगी, और ये वाली IA/2 इस हाफ पोर्शन में फ्लो होगी. So guys, current in a coil will reverse as the coil passes a brush, and this reversal of current as the coil passes a brush is called commutation. So guys, very important sentence कि जब कभी भी कॉइल जो है और कम्यूटेटर का सेगमेंट दोनों एक साथ जब ब्रश का जो कांटेक्ट है या ब्रश के ऊपर से जब निकलेंगे, उसके सतह से टच करते हुए जब निकलते हैं गाइस, तो वहां पर एक शॉर्ट सर्किट होता है. ओके, देयर विल बी ए शॉर्ट सर्किट बिटवीन, ऑल द 3 विल गेट शॉर्ट सर्किटेड एक्चुअली. ओके, द ब्रश, commutator and the coil, all the 3 will get a short circuit. Okay, so there will be a change, there will be a reversal of current in the undergoing coil, okay, during commutation. So there will be a change of current, the direction of current will be changed. So guys, this process will be called commutation. आप देख सकते हैं यहाँ पर guys,
कि कम्यूटेटर और ब्रश का डिजाइन कैसा होता है, इस तरीके से होता है. These are the commutator segment. Okay, here two commutator segments are shown over here, and these are the brushes. Okay, over which they are moving. So guys, brushes will be static and commutator will be moving with the windings, with the coils. So guys, आप यहां पर भी देख सकते हैं ये commutator segment है. एंड आप ये वाला डायग्राम भी प्रिफर कर सकते हैं गाइस, जहां पर ये पोल है, ये मेन पोल फील्ड पोल्स हैं. देयर आर मेन फील्ड पोल्स, नॉर्थ पोल इज देयर, साउथ पोल इज देयर, एंड दिस इज द रोटेशन. ओके, यू कैन, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द रोटेशन ऑफ कम्यूटेटर. सो गाइस, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि व्हाट इज कम्यूटेशन. ओके, सो जस्ट बिफोर द आर्मेचर कॉइल रीचेस द ब्रश, it carries current IA by A, where A is parallel path, you already know, in one direction, and soon after the armature coil has traversed the brush width, the coil current gets reversed and it becomes minus IA by A. So guys, आप देखते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है, जैसे कि नंबर 1 कम्यूटेटर सेगमेंट है, जैसे ही ये पास करेगा और इसमें जो कनेक्टेड कॉइल है, सो गाइस, जैसे ही ये ब्रश विड्थ को पार करेगा वैसे ही इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी. एज द ब्रश विड्थ इज ट्रैवर्स्ड बाय दिस कॉइल, okay, then the direction of current is reversed basically. So the direction of current from plus IA by A to minus IA by A, and this reversal of current in the armature coil by means of brush commutator bars is called commutation process. So guys, this will be called commutation process, जहां पर brushes, commutator और coils तीनों ही शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होंगे और गाइस वहीं पर करंट का रिवर्सल होता है. एंड गुड कम्यूटेशन मींस नो स्पार्किंग at the surface of brush and commutator during the continuous operation of DC machine, and a machine is said to have a poor commutation if there is sparking at the brush and commutator surface gets damaged. So guys, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर अच्छा कम्यूटेशन होगा, इसका मतलब ये है कि गैस उसको डायरेक्ट कम्यूटेशन भी कहा जाता है, जो बिना स्पार्किंग के, जो कि ब्रश और कम्यूटेटर के सरफेस पर बनती है, पैदा होती है, वो स्पार्किंग नहीं आनी चाहिए गैस. सो बिना स्पार्किंग के अगर कम्यूटेशन का प्रोसेस पूरा होता है तो उसको गुड कम्यूटेशन कहा जाता है गैस. एंड अगर पुअर कम्यूटेशन है, इसका मतलब गैस वहां पर स्पार्किंग होगी. आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो ब्रश और कम्यूटेटर का सरफेस है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर स्पार्किंग होती है और इससे गैस क्या हो सकता है, ब्रशेस एंड कम्यूटेटर एंड कॉइल्स ओके कुड गेट डैमेज. सो गैस, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये डायग्राम में, दीज आर द कम्यूटेटर बार्स, ओके, दीज आर द कम्यूटेटर बार्स एंड दीज आर द आर्मेचर वाइंडिंग्स, रोटर आर्मेचर वाइंडिंग्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं. सो गैस, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो गैस, So guys, आप यहाँ पर देख सकते हैं, when commutation takes place, the coil undergoing commutation is short circuited by the brush, and the brief period during which the coil remains short circuited is known as commutation period TC. So guys, commutation होता है वहां पर ब्रश, कम्यूटेटर और उसमें सोल्डरिंग की हुई कॉइल्स जो होती हैं वो तीनों शॉर्ट सर्किट कंडीशन में आती हैं और वहीं पर करंट का रिवर्सल होता है. करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट गेट्स चेंज्ड गाइस, ओके, रिवर्स. एंड द ब्रीफ पीरियड, और जो समय लगता है इसमें, उस समय को कहा जाता है गाइस कम्यूटेशन पीरियड, एंड इट इज डिनोटेड बाय टीसी. And if the current reversal is completed by the end of commutation period, it is called ideal commutation. So guys, अगर बिना स्पार्किंग के कम्यूटेशन होगा तो उसे आइडियल कम्यूटेशन कहा जाता है, और अगर ये तय समय पर पूरा कर लेता है तो उसको भी आइडियल कम्यूटेशन कहा जाता है. If the current reversal is not completed by that time, then sparking occurs between the brush and the commutator, which results in progressive damage to both. So guys, अगर वहां पर delayed commutation होता है क्योंकि coil में एक voltage induce होता है guys, there will be a reactance voltage in the coil undergoing the commutation. Okay, so guys, there will be a reactance voltage and which opposes the process of commutation, and therefore sparking will be produced at the surface of brush and commutator. So guys,
वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो जस्ट आप यहां पर देख सकते हैं कि देखिए ये जो मूवमेंट है कम्यूटेटर का कॉइल के साथ, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। और यहां पर हमने 8 सेगमेंट्स लिए हुए हैं गाइस। सो गाइस केस नंबर 1 लेते हैं, वी विल टेक नंबर 1 केस। सो गाइस एज यू कैन सी ऑन द डायग्राम, देखिए ये ब्रश है, दिस इज द ब्रश and these are the commutator segment. This is one first segment, this is second segment and then there will be third segment। और इसी तरीके से गाइस ये राउंड शेप में है तो 8 सेगमेंट जो है वो सबसे आगे है, अभी आप देख सकते हैं गाइस। और इसी पर ये कॉइल्स लगी हुई हैं, these are the coils, armature winding और armature coils are there soldered at commutator surface। सो गाइस अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि रोटेशन जो ब्रश जो है वो स्टैटिक रहेगा और जो कम्यूटेटर जो कॉइल के साथ कम्यूटेटर का जो डायरेक्शन है वो रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा, आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट के तरफ कम्यूटेटर जाएंगे। और गाइस ये इंसुलेशन है, आप देख सकते हैं यहां पर, दिस इज माइका इंसुलेशन। ओके, दिस थिन पार्ट इज कॉल्ड माइका इंसुलेशन। ओके, जिसकी जो मोटाई है, जिसकी जो विड्थ है वो बहुत ही कम है। सो गाइस अभी आप यहां पर देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं गाइस जो टोटल एम्पियर होगा वो 40 एम्पियर है। आइए टोटल एम्पियर जो ब्रश के थ्रू बाहर जाएगा। सो गाइस और कॉइल में करंट जो फ्लो होगी वो आप देख सकते हैं गाइस, एक पाथ ये है जहां पर करंट की डायरेक्शन चेंज होना है। हियर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टू बी चेंज्ड and the direction of current at this part has already been changed। okay, as you can see over here, यहाँ पर direction of current बदल चुकी है क्योंकि ये वाला जो कम्यूटेटर है ये आगे आ चुका है। ये वाला 8 कम्यूटेटर सेगमेंट था, आप देख सकते हैं, this was the 8 कम्यूटेटर सेगमेंट। okay, as you can see on the diagram, this is 8 कम्यूटेटर और इससे जुड़ी हुई जो कॉइल है गाइस उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं ये राइट टू लेफ्ट हो चुकी है। The direction of current has already been changed, okay, at here, and it is to be changed in these coils। okay, the direction of current is to be reversed in these coils which are undergoing commutation। so guys आप यहां पर देख सकते हैं। so case number we will take case number 1, the brush is entirely on segment 1 and therefore the current in coil A is 20 एम्पियर। आप देख सकते हैं गाइस कि जो पहला केस लिया गया है इसमें जो कम्यूटेटर का जो नंबर 1 बार है वह पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर रहा है ब्रश के सरफेस को। द कम्यूटेटर सरफेस ऑफ बार 1 is fully occupied by this brush। so you can see over here, so जो करंट आएगी गाइस इस ब्रश के थ्रू आप देख सकते हैं 20 ampere current will flow from right to left in this coil and 20 ampere current will flow from left to right in this coil, okay, which is undergoing commutation, that is coil A, as you can see over here in the diagram। यहां पर भी आप देख सकते हैं coil A जिसमें की direction of current change होना है। आप देख सकते हैं गाइस, तो पहला ये जो कंडीशन है, पहला ये जो केस है, यहां पर टोटल करंट जो होगी वो 20, ये वाली 20 और ये वाली 20, टोटल 40 एम्पियर करंट इस रास्ते से जाएगी। टोटल करंट will be flowing 40 एम्पियर थ्रू this commutator and brushes, okay, and it is going outward। so guys total current is 40 ampere as you can see। okay, so the coil A is yet to undergo commutation। आप देख सकते हैं कि coil A में करंट का डायरेक्शन चेंज होना है। ओके, इसके जो आगे वाली कॉइल है इसमें करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज हो चुका है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन से ब्रश की विड्थ को पार करते हुए चली गई है। ओके, एंड एज द आर्मेचर रोटेट्स, आप देख सकते हैं गाइस, एज द आर्मेचर रोटेट्स द ब्रश शॉर्ट सर्किट्स द कॉइल A and there are 2 parallel paths for the current into the brush। so guys let's move to the next slide। केस नंबर 2 में आप देख सकते हैं गाइस कि ये जो कम्यूटेटर है ये और आगे बढ़ चुका है, इट हैज बीन मूव्ड स्लाइटली। सो गाइस नाउ व्हाट इज द केस। ओके, ये ब्रश है, आप देख सकते हैं, दिस इज द ब्रश एंड नाउ दिस फिगर शोज द इंस्टेंट वेयर द ब्रश इज 1/4 ऑन सेगमेंट 2। आप देख सकते हैं दिस इज द सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय दिस ब्रश is 1/4 of second commutator and 3/4 on segment 1।
आप यहां पर देख सकते हैं गाइस, द 3/4 एरिया ऑफ दिस कम्यूटेटर बार इज ऑक्यूपाइड बाय दिस ब्रश। सो गाइस यहां पर भी आप देख सकते हैं कि 1 का जो कम्यूटेटर बार जो 1 है उसका करीब 3/4 पार्ट ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है ये ब्रश, और थोड़ा सा पार्ट जो 1/4 पार्ट है वो जो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 का है वह ब्रश के ऊपर है। सो गाइस बेसिकली होता क्या है, इसका जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है वो यहां पर ज्यादा होगा और यहां से कम करंट एंटर करेगी। आप देख सकते हैं गाइस, ओके, रेजिस्टेंस मान लीजिए R2 है कम्यूटेटर सेकंड का, और आप देख सकते हैं गाइस कम्यूटेटर फर्स्ट का जो रेजिस्टेंस है कांटेक्ट रेजिस्टेंस R1 है। सो गाइस बेसिकली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कांटेक्ट सरफेस कांटेक्ट के। सो गाइस जितना ज्यादा कांटेक्ट एरिया इसके टच में आएगा, ब्रश के साथ कांटेक्ट में आएगा गाइस, उतना ज्यादा करंट, उतना रेजिस्टेंस कम होगा और उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा गाइस। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि ओके 20 एम्पियर करंट इस कॉइल में फ्लो हो रही है गाइस, और 10 एम्पियर करंट लेफ्ट टू राइट इस कॉइल में फ्लो हो रही है, और जो अभी भी 1 नंबर के कम्यूटेटर बार से होते हुए बाहर जा रही है, the amount of current is flowing outward is 40 ampere. So what is happening actually guys over here, the contact resistance here, okay, of commutator segment 2 is larger, therefore less current will flow through this resistance, through this bar, second number of bar, and large current will enter will flow through this number 1 commutator bar, because the contact resistance here is less, okay, because more area is occupied by this brush. So guys आप देख सकते हैं अभी भी 40 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बढ़ते हैं, यहाँ आप पढ़ सकते हैं गाइस, फॉर द कंडीशन रजिस्टर R2 has 3 times the resistance of resistor R1 and therefore current distribution in the path will be shown. So guys R2 का जो रेजिस्टेंस है, जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस है इसका, वो बहुत ज्यादा होगा गाइस, क्योंकि बहुत ही कम एरिया इसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, और यहाँ पर जो R1 का कांटेक्ट रेजिस्टेंस है गाइस वो कम होगा, क्योंकि यहाँ एरिया ज्यादा ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, और इसीलिए गाइस यहां से करंट 30 एम्पियर फ्लो होगी और यहां से करंट केवल 10 एम्पियर फ्लो होगी इस कंडीशन में, इस केस में। सो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, वी विल सी द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर आप देख सकते हैं गाइस कि एज द आर्मेचर रोटेट्स the brush short circuits the coil A and there are 2 parallel paths for the current into brush, and when brush makes equal area of contact with bars 1 and 2, each bars deliver 20 ampere to the brush and coil A carries no current. So guys यहाँ पर आप देख सकते हैं this brush occupies the almost equal to half of the area of commutator bar 1 and half of the area of commutator bar 2. So guys आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट बिल्कुल ये हाफ एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी ब्रश कांटेक्ट जो रेजिस्टेंस होगा गाइज ये दोनों जगह पर सेम होगा, इसीलिए गाइज यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस नंबर 1 बार एंड थ्रू दिस नंबर 2 बार। सो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज द एक्चुअली द शॉर्ट सर्किट कंडीशन, okay, where the brush, commutators and coils, all the three are getting short circuited. आप देख सकते हैं guys, this is the condition where all the three get short circuited, and here okay when it breaks off the contact, then there will be a change in the direction of current in this A coil. ओके आप देख सकते हैं गाइस कि जैसे ही ये और आगे बढ़ेगा, ये कम्यूटेटर आगे की तरफ जाएगा, और जैसे ही इस कांटेक्ट टूटेगा इस ए वाली कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगी गाइस, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फिलहाल यहां पर गाइस इस केस के लिए देखिए आप, इसमें करंट 0 हो जाएगी। ओके, दिस इज द कॉइल विच इज गोइंग अंडर कम्यूटेशन। ओके, दिस इज द कॉइल, ए कॉइल, और यहां से जो करंट, जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा नंबर 1 बार के थ्रू ये 20 एम्पियर होगा, और यहां से भी जो करंट फ्लो होगा गाइस नंबर 2 के थ्रू वो भी 20 एम्पियर होगा। सो टोटल करंट डिलीवर्ड ओके आउटवर्ड इज 40 एम्पियर। सो गाइस इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी, यहां पर आप देख सकते हैं व्हेन ब्रश मेक्स इक्वल एरिया ऑफ कांटेक्ट विद बार्स 1 एंड 2, आप देख सकते हैं यहां पर भी इस डायग्राम में कि गाइस ये जो कांटेक्ट है वो इक्वल है बिल्कुल।
ओके, जो ब्रश ने ऑक्यूपाई किया हुआ है इसका हाफ सरफेस ब्रश कम्यूटेटर बार 1 का और कम्यूटेटर बार 2 का, दोनों का हाफ एरिया ऑक्यूपाइड बाय द ब्रश. So guys, same amount of current will be delivered through these two segments. Now we will switch to our next slide. So guys, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कम्यूटेटर सेगमेंट और आगे बढ़ चुका है और यहाँ पर एक कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो चुकी है, ये राइट टू लेफ्ट हो चुकी है गाइस. नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए कॉइल, okay, which has gone under commutation already been reversed. The direction of current is reversed. It has become right to left. Okay, earlier it was left to right. So guys, अब जो है नंबर सेकेंड वाला जो कम्यूटेटर बार है वो इसके नीचे आ चुका है. ओके, एंड 1 वाला जो बार है वो काफी बाहर जा चुका है. So guys, as the commutator passes over the brush, the contact area with segment 2 increases and with the segment 1 decreases, then R2 decreases and R1 increases. Therefore, more and more current passes to the brush through segment 2. आप देख सकते हैं गाइस कि अब जो पहला वाला सेगमेंट कम्यूटेटर सेगमेंट है इसका एरिया बहुत ही कम कांटेक्ट में है ब्रश के साथ. ये वाला एरिया आप देख सकते हैं बहुत ही कम कांटेक्ट में है. सो इसका जो कांटेक्ट रेजिस्टेंस होगा ये बहुत हाई होगा और इसीलिए गाइस यहां से कम करंट फ्लो होगी. ओनली 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस बार. एंड जो कम्यूटेटर बार सेकंड है गाइस उसका कांटेक्ट एरिया आप देख सकते हैं यहां पर काफी ज्यादा है जो ब्रश के संपर्क में है. ओके, सो लार्ज एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय दिस ब्रश ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट 2. सो गाइस, कांटेक्ट रेजिस्टेंस विल गेट लोअर and therefore more current will enter through this commutator bar second. Okay, so you can see the total amount of current delivered outside is 40 ampere. आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन गाइस अब 30 एम्पियर की करंट जो है ये नंबर 2 के बार से होते हुए बाहर जाएगी और 10 एम्पियर की करंट जो है वो 1 वाले बार से होते हुए बाहर जाएगी. सो टोटल अमाउंट ऑफ करंट इज 40 एम्पियर गाइस. अब आप देख सकते हैं तो यहां पर क्या हुआ गाइस, व्हेन द ब्रेक्स बिटवीन द ब्रश एंड सेगमेंट 1 इज फाइनली अकर्स, द करंट इन द कॉइल इज रिवर्स्ड एंड कम्यूटेशन इज अचीव्ड. आप देख सकते हैं गाइस यहां पर ए वाली कॉइल में जो कि कम्यूटेशन के दौरान कम्यूटेशन में अंडरगोइंग कॉइल थी और यह इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो चुका है. इट हैज बिकम राइट टू लेफ्ट. और अब गाइस ये वाला जो बी कॉइल है इसमें कम्यूटेशन होगा क्योंकि गाइस now what happens, this second number of commutator bars okay is going through this brush surface. Okay, due to the rotation of this commutator from left to right, you can see over here. Now after some time guys, ये वाला जो सेकेंड नंबर पे जो कनेक्टेड कॉइल है जो बी कॉइल है यहां पर अब डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स होगी जैसा कि आप देख सकते हैं. नाउ यू कैन सी ओवर हियर इन दिस डायग्राम द ब्रश इज एंटायरली ऑन सेगमेंट 2 and therefore the current in the coil is 20 ampere. The coil is yet to undergo commutation. So guys, अब जैसे ही यहां पर सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर के कम्यूटेटर के बीच में शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन आएगी, ओके, क्योंकि ये 2 वाला जो है वो और आगे बढ़ जाएगा और 3 वाला जो कम्यूटेटर बार है वो अंदर आएगा. तो जैसे ही फिर से all the 3 brushes, commutators and coils will get short circuited, then the direction of current will be reversed. So guys, basically आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर देखिए अब जो है 2 नंबर के ब्रश पर ये वाला जो जो कम्यूटेटर है सेकेंड नंबर वाला उसका जो कांटेक्ट है ये पूरा का पूरा ब्रश ने ऑक्यूपाई किया हुआ है. ओके, द होल एरिया ऑफ कम्यूटेटर बार सेकेंड इज ऑक्यूपाइड बाय दिस ब्रश. So what happens, so total current, the whole current will pass through this commutator bar second. So guys, here 20 ampere current is flowing from right to left in A coil and 20 ampere current flowing from left to right in B coil. So guys, what happens, total 40 ampere current will flow and will flow through this brush and 40 ampere current will be the output current. Okay, so यहाँ पर आप देख सकते हैं guys, so इसी को कम्यूटेशन प्रोसेस कहा जाता है और guys this process has been repeated again and again. Okay,
सो आप यहां पर देख सकते हैं गाइस, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कॉइल करंट to change from plus Ia to minus Ia is called the commutation period, and that is represented by Tc. It means the time measured from the instant the brush is fully on bar 1 to the instant the brush is fully on bar 2. So guys, आप यहां पर देख सकते हैं जो कम्यूटेशन पीरियड है उसको टीसी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो मापन है वो इस तरीके से किया जाता है कि जब ब्रश नंबर 1, जब ब्रश पर कम्यूटेटर बार 1 था, जो पूरी सरफेस को ऑक्यूपाई किया हुआ था, वहां से लेकर जो सेकेंड इंस्टेंट है जब ब्रश सेकेंड वाले कम्यूटेटर बार पर उसका जो सरफेस एरिया है वो फुल्ली ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो गाइस, यही टाइम कम्यूटेशन टाइम कहलाता है। So TC is equal to brush width divided by commutator peripheral speed. You can write down the formula guys. So guys, that's it for today. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे guys, वहां पर डिस्कस करेंगे कि कम्यूटेशन कितने प्रकार का होता है और इसको कैसे अच्छा कम्यूटेशन प्राप्त किया जा सकता है।